So, hello, guys. Welcome to another amazing and interesting vlog series filled with cool and fun facts. So, today I am visiting India's most unique and special city, which is known as the most famous and historical city of India, known as the Pink City. Famous for its delectable and delicious Rajasthani veg and non veg dishes such as la el mas, chicken masala, mutton korma, Sayfed Mas Jungali Mas, Maklio is Am Andi Dalbi Adi and much more, and it is full of amazing and historical forts and palaces all around the city. So today I am going to Jaipur's most iconic, historical and famous palace known as City Palace, which is located in Jaipur and is known as the most famous and historical forts of Jaipur, which used to be the homestay of the monarchy of Rajasthan. The kings who made a shape to Jaipur used to live in the city palace, like Raja Man Singh, Raja Sawi Jai Singh II, and many other strong and historic kings who created Jaipur as the modern Jaipur, filled up with many shops, bazaars, and many restaurants. So today I am going to cover all the key points and key facts and some unknown historical facts about this amazing palace in Jaipur, and also explain some key facts about this palace, who created it, how it was built, how many years it took to construct, and all those mind-blowing OSM facts. And I will also visit Jaipur's most famous and iconic restaurant, which serves and gives the most delicious, tasty, delectable, and some veg and non-veg dishes and starters, which should must try once in lifetime. I tried the chicken tandoori masala with some spiced tangy onion and butter naan with it too. Wash it all down. I drank a mint mojito with lime soda and extra mint leaves. So it was a really amazing and delicious treat for me. So I suggest you guys can also come at this restaurant and should must try their non-vegan veg starters once in your Jaipur trip. So without any further delay, let's begin this amazing and interesting plus historical vlog with cool and amazing facts. So let's begin. सो गाइस हम 12015 न्यू दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस से ट्रैवल करके इन जस्ट 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स में जयपुर आ चुके हैं। और हमारी जर्नी का जो किलोमीटर्स था वो सिर्फ 450 किलोमीटर्स, और मैं 5 घंटे 30 मिनट्स में हमारी शताब्दी आ गई थी जयपुर जंक्शन। सो गाइस वहाँ से मैं आके गया था सीधा शीश होटल, जो कि बहुत लग्जूरियस और फेमस रहा है जयपुर में। और राइट नाउ अभी हम बैठे हैं इन द मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल राजस्थानी रेस्टोरेंट, वेयर आपको नॉनवेज और वेज दोनों के स्टार्टर्स बहुत बढ़िया और गर्म मिलेंगे गाइस। और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। और मैंने ऑर्डर किया है एक हाफ़ चिकन और रुमाली रोटी गाइस। और हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। इसकी देखिए कितनी खूबसूरती, कितनी मस्त है गाइस। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा ही देखिए एकदम ट्रेडिशनल राजस्थान के पैलेस की तरह ये रेस्टोरेंट है। और हम गाइस अभी यहाँ खाना खाएंगे। और इसका नाम है ग्रिल्ड कबाब्स एंड करीज़ ग्रिल्ड, ऐसा कुछ नाम है इसका गाइस। और ये राजस्थान में है, और ये ठीक हवा महल के पास आपको मिल जाएगा। आप हवा महल से मस्त घूम के यहाँ पे आके अपने फेवरेट स्टार्टर्स, नॉन वेज स्टार्टर्स, वेज स्टार्टर्स और जितने भी अलग अलग टाइप के टेस्टी डिशेज़ हैं उसे ट्राई कर सकते हैं। घूम फिर के आप हवा महल से घूम के आप यहाँ आ सकते हैं इस रेस्टोरेंट में, और अपने मनचाहा स्टार्टर्स, मनचाहा नॉन वेज आइटम्स और मनचाहा डेजर्ट्स खा सकते हैं। और चिकन भी खा सकते हैं, और फ़िश सब मिलता है यहाँ। अब गाइज़ मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या ऑर्डर किया, वो आ चुका है यहाँ, देखिए गाइज़। सो गाइज़ ये रहा मेरा हाफ़ चिकन जो मैंने मंगवाया है। काफ़ी जूसी और टेस्टी और टेंडरफुल लग रहा है, साथ में नान है। तो गाइज़ मैं आपको इसका टेस्ट खा के दिखाता हूँ गाइज़ आपको। सो गाइज़ अभी हमारा ये हाफ़ चिकन मैंने प्लेट में रख लिया। अब मैं इसे टेस्ट करके आपको इसका टेस्ट बताता हूँ गाइज़। सो गाइज़ अभी हमने चिकन खा लिया, और चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी था, टेंडरफुल था, जूसी था, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, और राजस्थानी टेस्ट थे उसमें। तो मेरा चिकन हाफ़ फुल ख़त्म हो चुका है, चिकन तंदूरी खा लिया है, और वो रोटी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और टेंडर थी। सो गाइज़ अब मैंने मंगवाया है यहाँ पे एक ग्रीन वर्जिन मोजिटो, जो कि जिसमें मिंट, सोडा, स्प्राइट और कुछ मिंट की पत्तियाँ और नींबू है और आइस है गाइज़। तो गाइज़ अब मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ और कि इसका टेस्ट कैसा है गाइज़।
सो गाइस हमारा ये वर्जिन मोजिटो भी फिनिश हुआ, काफ़ी स्पार्कलिंग, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग, काफ़ी फ्रेश और काफ़ी टेस्टी था गाइस। सो गाइस ये रहा वो शानदार रेस्टोरेंट, काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल ट्रेडिशनल महल की तरह खूबसूरत और बढ़िया। आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिया और काफ़ी याद आएगी यहाँ की। ये था, काफ़ी शानदार है। आप कहाँ थे? वो खा बताया, बनाया चिकन बहुत अच्छा था। जो आपने खाया वो उन्होंने बनाया। आपने बनाया? काफ़ी बढ़िया बनाया आप, थैंक यू। नाम क्या है? राकेश। राकेश, आपने बनाया वो चिकन? काफ़ी बढ़िया और फ्लेवरफुल था, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, थैंक यू। कहाँ, राजस्थान जयपुर से हैं? उत्तराखंड से हो, अच्छा ठीक है, काफ़ी बढ़िया बनाए, थैंक यू। हाँ बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो गूगल पे फीडबैक ज़रूर कर दीजिएगा, आने वाले लोगों के लिए रिकमेंडेशन। क्या करना है मुझे? गूगल पे रिव्यू आने वाले लोगों के लिए रिकमेंडेशन, जैसा भी आपको टेस्ट वगैरह लगे, तंदूरी चिकन स्पेशल का हो गया, थाली का हो गया, बिरयानी का हो गया, और उसके बारे में गूगल पर जाके रिव्यू में आप बता सकते हैं लोगों को, आने वाले लोगों के लिए कि आगे ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो गाइस जयपुर की मेहमान नवाजी की तो बात कहनी पड़ेगी गाइस जयपुर की मेहमान नवाजी की तो गाइस बात करनी पड़ेगी। काफ़ी स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग खाना था, हमारा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरे मन को। चलिए गाइस अब मैं आपको हवा महल दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं जयपुर के सबसे फेमस सिटी पैलेस में। तो देखिए गाइस ये हमारे पीछे, ठीक पीछे सिटी पैलेस, जो कि जयपुर का काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक किला है। चलिए गाइस मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें और हिस्ट्री और इसके बारे में कुछ नॉलेज बताता हूँ गाइस। तो ऐसा है गाइस हमारा सिटी पैलेस, जो कि काफ़ी खूबसूरत बढ़िया है, और ये मार्बल से बनाया गया है, और मार्बल पे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से फ्लावर्स और जेमस्टोन्स की कार्विंग की गई है गाइस, और काफ़ी बढ़िया है। सो गाइस अभी राइट नाउ हम खड़े हैं सिटी पैलेस के सामने, और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत और बढ़िया होगा। तो गाइस अब इमेजिन करिए कि उस वक्त जब यहाँ राजा महाराजा रहते होंगे तो ये कितना अंदर से खूबसूरत होगा, और कितने सोने, हीरे, मोती, जवाहरात, डायमंड और गोल्डों से ऑर्नामेंटेड होगा ये। उस वक्त के समय में इसमें खूब डायमंड्स और ऑर्नामेंट्स से ये पूरा किला होगा अंदर से। तो चलिए गाइस मैं आपको अंदर से सिटी पैलेस दिखाता हूँ। सामने ही तोप रखी हुई है, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से फ्लावर्स की कार्विंग की जा रही है उस बोर्ड्स पे। तो गाइस अभी हम एकदम सामने खड़े हैं सिटी पैलेस के मेन डोर के सामने। देखिए कितना भव्य, कितना बड़ा और कितना ह्यूज है इसका गेट, और कितना बड़ा है। तो सोचिए जब राजा महाराजाओं के टाइम में होगा तो कितना ऐतिहासिक होगा ये। और देख सकते हैं दो बड़े राजा महाराजाओं की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, और काफ़ी यहाँ पे दो तोप भी हैं गाइस। सो गाइस अब मैं आपको सिटी पैलेस का अंदर का दिखाता हूँ गाइस। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ब्यूटीफुल है सिटी पैलेस, और आपको मैं इसके हर एक पॉइंट्स कवर करके दिखाऊंगा। तो गाइस सामने यहाँ पे है बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल तोप। इस तोप से, यानी इसे इंग्लिश में कैनन बोलते हैं, इससे पहले जो दुश्मन हुआ करते थे, दुश्मनों को इसी से शूट किया जाता था। मतलब जो दुश्मन रहते थे, अटैकर्स रहते थे, उस पर ये पीछे से गोला दागते थे और यहाँ से छोड़ देते थे। उससे जो रहती थी वो आर्मी, ये डिफेंस का एक वेपन था उस वक्त के किंग्स का। सामने देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कार्विंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कार्व किया गया है, फ्लावर की डिज़ाइंस, और बहुत बड़ा दरवाज़ा है इसका। ये इसका गेट है, ये इसका मेन गेट है गाइस। और नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी अमेजिंग है इसकी नक्काशियाँ, आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा है सिटी पैलेस गाइस। सो ये जो किला है यहाँ पे इन द 16th और अराउंड द 15th सेंचुरी ये किला हुआ करता था। ये ओन किया जाता था
बाय किंग ऑफ जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह द सेकंड। जय सिंह द सेकंड इस किले के ओनर थे और वो यहाँ के जयपुर के राजा थे अराउंड द 16 और 17th सेंचुरी। तो देख सकते हैं गाइस सिटी पैलेस कितना खूबसूरत है। गाइस मैं आपको एक एक हिस्ट्री बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे विज़िटर एमिनिटीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है यहाँ की विज़िटर एमिनिटीज़। यहाँ पे मुबारक महल है और रथ यार्ड खाना है, कोर्ट यार्ड है और एक्सेसिबल फैसिलिटीज़। मुबारक महल का कोर्ट यार्ड है, रैंप है, चाइल्ड केयर रूम है और एक फर्स्ट एड रूम है और एम्बुलेंस 24/7 है और ड्रिंकिंग का पानी है, गोल्फ कार्ट है और व्हील चेयर और लाइब्रेरी है और विज़िटर बुक है। और काफ़ी बढ़िया है ये सिटी पैलेस, काफ़ी भव्यशाली और काफ़ी खूबसूरत है गाइस। चलिए गाइस मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ इस सिटी पैलेस के बारे में। तो ये गाइस ये भी कोई गेट रहा है। उस समय के टाइम में सोचिए गाइस कि ये कैसा हुआ करता था। यहाँ पे ताला लगा हुआ है और ये यहाँ कोई अंदर जाने का रास्ता होगा शायद कोई सा। तो देखिए गाइस ऐसा है सिटी पैलेस। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम। सो यहाँ से टिकट ली जा सकती हैं। तो आपको मैं कॉस्टिंग बता देता हूँ टिकट की। तो यहाँ आपको फॉरेनर आ सकते हैं और ये इंडियंस का काउंटर है। ये यहाँ क्लॉक रूम है, ये सिटी पैलेस है और ये महाराजा सवाई मान सिंह का पैलेस है ये सिटी पैलेस। और काफ़ी खूबसूरत और भव्य इमारत है ये। और वहाँ सामने भी कोई बिल्डिंग है। जी तो यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं गाइस, यूएस के, यूके के, हर जगह से लोग आते हैं सिटी पैलेस को देखने के लिए। तो गाइस चलिए मैं आपको आगे का बताता हूँ। सो गाइस अब मैं आपको इस सिटी पैलेस जो हमारे भारत की प्राइड महाराजा मान सिंह सवाई मान सिंह का किला था, मैं आपको उसके बारे में कुछ ख़ास हिस्ट्री और कुछ नॉलेज बता देना चाहता हूँ गाइस। सो ये जो किला है ये एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल रेसिडेंस है और एक फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर्स हैं ऑफ द रूलर ऑफ जयपुर। जो जयपुर स्टेट राजस्थान के हेड क्वार्टर्स हैं उनके रूलर का ये घर हुआ करता था। ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था जब जयपुर का इंस्टैब्लिशमेंट यानी जब जयपुर शहर बन रहा था, जब जयपुर का शहर बन रहा था, जब इट वाज इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिटी जयपुर अंडर द रीजन, जब वो महाराजा सवाई जय सिंह के अंडर था जयपुर का रीजन, तब इस किले को बनाया गया था गाइस। और ये किला बनाया गया था अराउंड समवेयर इन दी 17th सेंचुरी। तो गाइस ऐसा है कुछ ये किला। सो गाइस ये रहा राजा मान सिंह का फोर्ट है और यहाँ इस फोर्ट के अंदर एक म्यूज़ियम भी है गाइस। चलिए अब अंदर चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे टिकट का वो होता है चेक। सो गाइस आप देख सकते हैं राजा मान सिंह का किला कुछ इस तरह से दिखता था, कुछ ऐसी तरह की डिज़ाइन और नक्काशी हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एम्प्रर्स की और यहाँ पे कुछ सिपह सालार की। तो गाइस ये खूबसूरत फ़ोटो है राजा की। गाइस देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं इनकी फ़ोटो गाइस। यार एक बोलना है 3 ही। तो गाइस ये आधा पत्थर और आधा मार्बल से बनाया गया है ये किला गाइस।
गाइस ये देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। चलिए गाइस अब मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। तो देखिए सिटी पैलेस का कितना बढ़िया व्यू है ये गाइस, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये नक्काशी थी। यहाँ ऐसे फ्लावर की बनाई गई है ये फ़ोटोज़, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। और ये सारी सर्विसेज और एक्सेसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे है सब। और चलिए गाइस अब मैं आपको पूरा किला अंदर से दिखाता हूँ। तो ऐसा दिख रहा है ये फोर्ट, तो काफ़ी बढ़िया है। सो गाइज़ ये रहा कितना खूबसूरत किला है ये बाहर से, सिटी पैलेस। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा था ये। तो देखिए गाइस ये सामने हमारे है राजस्थान की सबसे फेमस डॉल, जो कि कठपुतली आर्ट है। दो क्वीन का आर्ट है गाइस, ऐसा रहता है राजस्थान का फेमस आर्ट। इसके कठपुतली शोज़ भी रहते हैं, मतलब कठपुतली को डांस करके दिखाते हैं ऐसे गाइस। और सामने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े तोप हैं, देखिए सकते हैं आप गाइस कितने बड़े ये आर्मी के हुआ करते थे। ये वेपन ये सब डिफेंड करने के लिए हुआ करते थे। जो उस वक्त की जो मार धाड़ हुआ करती थी उसमें ये डिफेंस के वेपन्स हुआ करते थे उस वक्त के किंग एम्परर किले यहाँ के जयपुर के। तो जब ये शहर जयपुर बन रहा था, इंस्टैब्लिश हो रहा था इन अराउंड 17th एंड 16th सेंचुरी, उसी वक्त के दौरान राजा मान सिंह ने इस किले का निर्माण किए थे। और काफ़ी खूबसूरत है ये, और मैं आपको इसकी जानकारी बताता हूँ गाइस। और ये बना है मार्बल और पत्थर से। सामने है इसका म्यूज़ियम। सो गाइज़ ये रहा हमारा मान सिंह का जयपुर फोर्ट। सामने एक बहुत बड़ी तोप रखी है और सामने देखिए गाइज़ कितना खूबसूरत है ये किला। और अंदर म्यूज़ियम भी है और शो भी लगता है अंदर। सो गाइज़ मैं आपको इस किले की और हिस्ट्री बताना चाहता हूँ गाइज़। सो गाइज़ मैं आपको इस सिटी पैलेस की एक और फैक्ट बता देना चाहता हूँ। सो गाइज़ ये जो सिटी पैलेस है ये जयपुर में है और ये शोकेस करता है अ फ्यूजन ऑफ राजस्थानी एंड मुगलई आर्किटेक्चर। यानी ये जो पैलेस है इसमें आधा तो राजस्थानी है आधा मुगलई आर्किटेक्चर है। यानी इसमें दोनों टाइप के आर्किटेक्चर्स मिलेंगे, राजस्थानी भी मिलेंगे और मुगलई मिलेंगे। दोनों के मिक्स्ड आर्किटेक्चर्स इस शानदार सिटी पैलेस में आपको देखने मिलेंगे, मुगलई और राजस्थानी आर्किटेक्चर। और इस आर्किटेक्चर को खोजा गया था भाई महाराजा जय सिंह II इन द ईयर 1727। तो इस साल में राजा जय सिंह ने इस किले को खोजा था और इसमें एक फ्यूजन था राजस्थानी और मुगलई आर्किटेक्चर का, और इसे खोजा था महाराजा सवाई जय सिंह ने इन 1727 गाइस। चलिए गाइस अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस आपको मैं अंदर का दिखाता हूँ शो।
सो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के म्यूज़ियम में गाइज़। सो गाइज़ मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ। सो गाइज़ ये एक जाल झूलनी बोट है। ये एक ट्रेडिशनल राजस्थानी बोट है जो किंग सवाई मान सिंह द सेकेंड द्वारा 17th सेंचुरी में यूज़ की जाती थी गाइज़। सो गाइज़ राइट नाउ हम खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ जाल झूलनी बोट। सो मैं आपको इस जाल झूलनी बोट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो जाल झूलनी बोट है, ये बोट ना राजा मानसिंह द्वारा चलाई जाती थी 17th सेंचुरी में। और मैं बता देना चाहता हूँ ये वुड, क्लॉथ और मेटल से बनाई गई है। और ये ऑन जाल झूलनी एकादशी एक आइडल जो कि कृष्ण भगवान के हैं, ये इस बोट को राइड पे ले जाते थे ऑन ताल कटोरा लेक बिहाइंड द पैलेस। द बोट इज़ ए हाइब्रिड, यानी ये बोट जो है एक हाइब्रिड टाइप की बोट है। और ये एक इसका टॉप एक अम्बाबारी जैसा है, उसमें एक थ्रोन का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आइडल को प्लेस करते थे और ओवर एक प्लेस पवेलियन के पास। सो ये एक रिलीजियस टाइप का बोट है जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी की जो मूर्ति है उस मूर्ति को यहाँ रखते थे और इसे थ्रू द सी यानी समुद्र के थ्रू ले जाया करते थे। सो गाइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस जाल झूलनी बोट। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। So, on Jal Jholni Ekadashi, it's a festival. An Indian, an idol of Krishna, takes a boat right on Tal Katora Lake behind the palace. यानी कि कृष्ण भगवान की जो एक मूर्ति है वो एक इस बोट में एक राइड लेती है टाल कटोरा लेक पे, जो इस पैलेस के ठीक पीछे है। वो भी हम अभी कवर करके मैं आपको वो भी दिखाऊंगा गाइस कि इस बोट पे श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो मूर्ति को टाल कटोरा लेक पे कैसे राइड करके पैलेस के पीछे ले जाते हैं। द बोट जो ये बोट है ये एक हाइब्रिड है और इसका टॉप है, द टॉप इज़ लाइक ए अम्बाबारी विद अ थ्रोन। ये टॉप इसका अम्बाबारी की तरह है, मतलब एक थ्रोन की तरह, मतलब एक महल की तरह है। और उसका प्लेटफॉर्म पे ये जो ऊपर ये आपको दिख रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे ही श्री कृष्ण भगवान के आइडल को ले जाया करते थे गाइस। और प्लेटफॉर्म है और इसका प्लेस्ड करते थे एक पवेलियन के ऊपर गाइस। सो ये 19th सेंचुरी में काफ़ी यूज़ किया जाता था और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये बोट। और आपको गाइस मैं और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सो ऐसी दिखती है ये बोट, फुल व्यू से दिखा देना चाहता हूँ आपको। चलिए गाइस दूसरे मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ते हैं। अभी से फुल व्यू में देख लीजिए आप। सो गाइस मैं आपको बता रहा था कि जिस बोट के सामने हम अभी खड़े हैं वो तख्ते रावण है। सो गाइस अभी हम तख्ते रावण के पास खड़े हैं। सो गाइस मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ गाइस। सो ये जो तख्ते रावण है ये मैं बता देता हूँ, दिस इज़ ए पोर्टेबल थ्रोन। ये एक थ्रोन है जो कि कैरी करती थी रूलर ऑन स्पेशल ओकेशन। जो राजा सवाई मान सिंह थे उनको इसी थ्रोन पे बिठा के, जैसे कोई स्पेशल ओकेशन हो गया, कोई त्यौहार हो गया, उस पर राजा मान सिंह को बिठा के घुमाया करते थे ऑन स्पेशल ओकेशंस। और ये कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड टोन्स इन एन इफेक्ट कॉल्ड गंगा जमुना। यानी जो कॉम्बिनेशन है इस थ्रोन का ये सिल्वर और गोल्ड टोन्स का है और इसका इफ़ेक्ट को कहते हैं गंगा जमुना। और इसे पास से देखे जाएं तो इसका जो टेक्निक है, ये इसकी एक टेक्निक है जिसमें इसमें अलग अलग टाइप के बीड्स और अलग अलग टाइप के गोल्ड और सिल्वर्स लगाए गए हैं गाइज। सो गाइज ये जो पोर्टेबल थ्रोन आप देख रहे हैं इसे क्लोजली देखिए। सो गाइज लुक क्लोजली एट द ऑफ द वर्क। सो इसका जो वर्क है ये एक टेक्निक है, अ टेक्निक ऑफ पुशिंग आउट मेटल। यानी ये एक टेक्निक है मेटल को पुश करने की टू क्रिएट पैटर्न्स। यानी इसका जो थ्रोन बनाया गया है वो एक इस तरीके से मेटल को बाहर निकाल के बनाया गया है अलग अलग पैटर्न्स बनाने के लिए। और वो अलग अलग पैटर्न्स हैं फैंटास्टिकल बीस्ट्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, एनिमल्स की स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ कुछ फ्लोरिशिंग फ्लोरल मोटिव्स जो इंडिकेट करते हैं स्टैच्यूर ऑफ ए
पर्सन सिटिंग, यानी कोई पर्सन उसके अंदर बैठा हुआ है और उस लैंड की रिचनेस। सो गाइस यही है तख्ते रावण, ये है राजा मान सिंह का, इसमें वो बैठ के ओकेशंस पे जाया करते थे। मैं अब इसको आपको क्लोज व्यू में दिखाता हूँ गाइस। सो कुछ ऐसा दिखता है, ये काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी बढ़िया है, ऐसा दिखता है गाइस। अब गाइस आपको बता देता हूँ पिंजस के बारे में। सो ये जो पिंजस है, ये पिंजस भी एक तरह की चीज़ है। ये पिंजस एक कवर्ड प्लानिक्विन है विद डोर्स। ये एक प्लानिक्विन है जिसके साथ डोर्स हैं और टिंटेड ग्लास विंडोज़ हैं। और पिंजस इंश्योर करता है पैसेंजर्स की प्राइवेसी और कवर्ड ट्रांसपोर्ट्स। उस वक्त रॉयल वुमेन के लिए या फिर रॉयल किंग्स के लिए, जो रॉयल किंग और क्वीन हुआ करते थे, उनके लिए ये एक आम बात हुआ करती थी। सो ये जो पिंजास हैं, इनमें उस ज़माने के यानी जो किंग राजा मानसिंह थे और उनकी जो वाइफ, जो उनकी क्वीन थी, वो इसी वाले पिंजस में बैठ के जाया करते थे। और इसे दो गार्ड्स यानी कि जो सिपाही रहते थे, वो एक एक साइड से पकड़ के उसे ले जाया करते थे और अंदर राजा मान सिंह अपनी बीवी के साथ जाया करते थे उस वक्त के टाइम में। तो ये एक, जिसमें ये एक कवर्ड गेट रहा करता था, इसी से राजा और रानी बाहर देखा करते थे। तो ये है पिंजास। इसे ये एक डोर्स हैं जिसमें टिंटेड ग्लास हैं और विंडोज़ हैं। ये पिंजस इंश्योर करता है कि पैसेंजर की प्राइवेसी रहे, बिल्कुल जैसे किसी आज का फर्स्ट क्लास है ट्रेन्स का, वैसे उस समय के दौरान पैसेंजर्स की प्राइवेसी के लिए था ये। और ये कवर्ड ट्रांसपोर्ट्स यूजुअली रॉयल फैमिलीज़ द्वारा यूज़ किए जाते थे, जैसे किंग और क्वींस। और ये जयपुर की तो बहुत फेमस बात है। चलिए गाइज़ मैं आपको इसको पास से दिखा देता हूँ। वाह गाइज़, कितना ऐतिहासिक और ख़ूबसूरत लग रहा है ये आपको गाइज़ पास से दिखा देता हूँ। ये है पिंजस, जो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी आलीशान भी लग रहा है गाइज़। सो गाइज़ ये सारे जितने भी पुराने टाइप के ये फोर्ट्स जो राजा रानी इससे ट्रैवल किया करते थे, उसी का ये एक और है, ये मियाना है। और गाइज़ मैं आपको मियाना की कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको। सो गाइज़ ये जो मियाना है, ये मियाना कैरी किया जाता था मैन से। सो जो उस वक्त के सिपाही थे, ये अपने कंधों में इसे ले जाया करते थे। और मियाना एक पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उस वक्त के टाइम में। कुछ इन बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट पार्ट्स के सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत यूज़फुल हुआ करता था। आदमी इसे अपने कंधों पे लाद के ले जाया करते थे। और बहुत सारे राज्यों और बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट में मिनिएचर पेंटिंग्स जो कलेक्शन में हैं और एल्सवेयर कोई भी तरह का शो, वो इस मियाना में यूज़ किया जाता था ले जाने के लिए। और बहुत सारे कंटेक्स्ट, जैसे कि कोई वेडिंग, वारफेयर, रॉयल पैरेड्स, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड डेली लाइफ, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग सामान इस मियाना में जाए जाते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ कैरीड बाय men on their shoulders and the Miana is a popular. So this is the end of the first part of this vlog series of visiting India's most famous and historical city, which is known as the Pink City, which is Jaipur. So this video will be continued in the next part of this vlog series, which is gonna be the second part 2 of the vlog series. So please like, subscribe and share it with your friends and family. And if you are new to this channel, please don't forget to hit the bell icon for new updates of amazing and interesting vlogs filled with cool facts. So stay tuned until the next part. And stay safe and take care.